Assalamu alaikum. Aziz Ahmed here again on 23rd December 2025. تقریباً 11:15 رات کی آج پھر منگل کا دن ہے اور اڈیالہ میں پھر ایک علیمہ خان لیڈ پروٹیسٹ جاری ہے for not letting the family and lawyers meet عمران خان. اور اب پتہ نہیں اب رات کو پھر وہ واٹر کینن کے ساتھ اور کیمیکل کے ساتھ یہ ڈسپرس کریں گے نہیں کریں گے. ابھی تک تو مظاہرین ادھر ہی ہیں اور علیمہ خان نے دھرنا دیا ہوا ہے. اس ویڈیو کے اندر میں کچھ وہ محمود اچکزئی کی تقریر کے ایکسرپٹس اور رابعہ باجوہ کے تقریر کے ایکسرپٹس بھی انکلوڈ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو ایک سینس ملے کہ کیا اپوزیشن کیا پلان کر رہی ہے آگے کے لیے اور لائرز کیا ان کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کرنے اور تحریک چلانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور باقی اکانومی کے بارے میں بھی اور پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن وچ واز لائک sell out a scam of the century as some people have said. اس کے بارے میں بی بی سی کی بھی ایک رپورٹ کو انکلوڈ کرتا ہوں. کہ نورین آپا پلاسٹک بیگ پہنے ہوئے اور مسکراتے ہوئے اس نظام کے منہ پہ تماچا مار رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ یہ فسائیت یا ظلم یا جبر ہمارے راستے نہیں روک سکتے. ہمارے دل میں ہے ایک نہ ہے زور نہ بازو ہے دل میں ہے سرپرستی کی تمنا آپ ہمارے دل میں ہے. آج ہمیں سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں. ایک دن جب سارا پاکستان نکل آ جائے گا اس چیز کا یہ نہ انتظار کریں. عمران خان کو نہ تو صرف کہتے تنہائی سے نکالیں, غیر آئینی غیر قانونی عمران خان کو جو قید میں رکھا ہوا ہے بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی عمران خان کو اب رہا کر دیں, کیونکہ اب پاکستان صرف ہمارا نہیں پاکستانی قوم کا بھی 90% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ساروں کو پتہ ہے. اور اس وقت لوگوں کا جب غصہ کنٹرول سے باہر نکل جائے گا اس کا انتظار نہ کریں. پاکستان کے ساتھ نقصان ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں آج تک یہ بتا نہیں سکے کہ عمران خان کے ساتھ ظلم کر کیوں رہے ہیں. ابھی تک آپ میں سے کوئی ہمیں نہیں سمجھا سکا. جو سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان قید تنہائی میں کہ صرف ملاقات کے لیے ہم کھڑے نہیں, ہم عمران خان کی اب رہائی کے لیے کھڑے ہیں. ہم اس لیے نہیں کھڑے کہ صرف کہ جی ہماری ملاقات کروا دیں. عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے. آج ان کے وہ کیا وکالت نامہ سائن کروانے کے لیے لائر 4 گھنٹے بیٹھے رہے کیونکہ ان کی بیل اپلیکیشن بشرا بی بی اور عمران خان کی فائل کرنی تھی. انہوں نے آج انکار کر دیا ہے, جو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ فائل کریں. انہوں نے آج انکار کر دیا ہے کہ وکالت نامہ نہیں دینا لائر کو. یہ دماغ خراب ہو گیا ان کا. یہ خوف میں کانپ رہے ہیں اندر بیٹھ کے. یہ جو ظلم ہوتا ہے نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور جیسے ہی عمران خان نے کہہ دیا سڑکوں پہ نکلو, آج ہم سڑک پہ کھڑے ہیں. آج ہمیں آپ سڑک پہ دیکھ رہے ہیں. پاکستان نکلے گا انشاءاللہ. میڈم جو سزاؤں کا سیل میلہ لگا ہوا ہے تو یہ کب تک یہ لگا رہے گا, یہ کب رکتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ تب رکے گا جب یہ جو ملک سے یہ جو اوپر حکمران بیٹھے ہوئے نا, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ناجائز بیٹھے ہوئے اور یہ ڈرے ہوئے ہیں. یہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ غریبوں کو اٹھا کے جیلیں بھر رہے ہیں. کیوں بھر رہے ہیں؟ جب ظالم آتا ہے نا ظلم کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کیونکہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے. اب وہ خوف میں لوگوں کو جیلوں میں بھر رہے ہیں. اگر یہ خوف نہ ہوتا آج عمران خان کو باہر نکال دیتے. کیوں ڈر رہے ہیں عمران خان سے؟ کیونکہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. 90% لوگ جن کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں ان سے ڈر رہے ہیں کہ 20 کروڑ لوگ اپنا حق اس ملک میں مانگیں گے. یہ نہیں ان کو حق دینا چاہتے. یہ تھوڑے سے لوگ اس ملک کی لوٹ مار لگائی دیا, تو اس لیے یہ ڈرے میں یہ ہمارے اوپر کیسز بنا رہے ہیں. یہاں غریبوں کو پکڑ لیتے ہیں, یہاں پہ چھاپے مارتے ہیں, ان کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. ابھی بھی باری باری آ کے کہہ رہے تھے کہ جی اٹھ جائیں اب واٹر کینن چلے گا. انہوں نے کہا واٹر کینن ہم نے اپنی تیاری کر لی, اب ہم تیار ہو گئے تو واٹر کینن ہی نہیں ڈال رہے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں, انتظار ڈال چکے پانی میں, اب وہ کس پہ پھینکیں گے پانی ہمیں نہیں پتا. اس ظلم اور نظام کے جبر میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ آخری امید یہی اللہ کا نام ہے. اور اللہ کے لیکن پورے علاقے کی جو بجلی ہے وہ بند کر دی گئی. عام طور پر پہلے یہاں کی لائٹیں بند کی جاتی ہیں, لیکن آج پورے گورکھپور علاقے کی گورکھپور جو گاؤں ہے اس کی بجلی جو ہے وہ بند ہے. شدید سردی ہے لیکن دھرنا جاری ہے اور دھوپ اندھیرا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
इस वक्त आज मंगल का दिन है और हर मंगल की तरह इस वक्त भी जो है रात के इस पहर हम यहाँ मौजूद हैं अडयाला जेल के बाहर अपने मुर्शिद अपने कप्तान इमरान अहमद खान नियाजी कैदी नंबर 804 के जहाँ पे वो मुकीद हैं उनसे थोड़ा सा पीछे करके हम यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। अलीमा आपा, उस्मा आपा, नौरीन आपा यहाँ मौजूद है। हमारे बहुत सारी जो हैं यहाँ पर वर्कर्स की बहुत तादाद है जो यहाँ पे आई हुई है, जो मौजूद है। और किस लिए? सिर्फ अपने कप्तान इमरान अहमद खान नियाजी के लिए कि इमरान अहमद खान नियाजी के जिनको जेल मैनुअल, जिनको कानून, आईन, हर चीज ये इजाजत देती है कि उनकी फैमिली उनसे मिले, उनके वकला उनसे मिले, उनकी लीडरशिप उनसे मिले, उनके वर्कर्स उनसे मिल सके, उनके दोस्त अहबाब उनसे मिल सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह इन्होंने आज भी ना वकला को मिलने दिया, ना इन्होंने किसी एक बहन को मिलने दिया। सब यहाँ पर धरना दे के बैठे हुए हैं। देखें, लास्ट टाइम भी इन्होंने वाटर कैनन यूज किया जिसमें केमिकल था, उससे पहले भी इन्होंने वाटर कैनन यूज किया, साथ साथ लाठी चार्ज भी इन्होंने किया। ये सब कुछ करने के बावजूद आप देखें कि हर बार यहाँ पर लोग जो हैं वो मैक्सिमम तादाद में यहाँ पर आते हैं दोबारा, और वो आकर बताते हैं कि आप जितनी मर्जी है फसादियत बर्पा कर लो, आप जितना मर्जी है जुल्म बर्पा कर लो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, इमरान खान का वर्कर जो है वो हार नहीं मानेगा और वो खड़ा रहेगा, और वो इंशाअल्लाह ताला तब तक खड़ा रहेगा और इस तहरीक का हिस्सा बना रहेगा जब तक हमारे लीडर इमरान खान को रिहाई नहीं देते। बात अब रसाई की नहीं है, सिर्फ बात रिहाई की है कि इमरान खान को नाहक सजा दी है। आपने इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, आप इमरान खान को किसी से मिलने नहीं देते, और आप ये चाहते हैं कि इमरान खान को आसाबी तौर पर आप तोड़ सकें, उनको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं आप। लेकिन ये याद रखिएगा कि इमरान खान इतने मजबूत आसाब के मालिक हैं कि वो शख्स कभी भी हिम्मत नहीं हारेगा। आपने उनके पैगामात रोके, क्या हुआ? अभी तोशा खाना जिस दिन आपने सजा सुनाई, आपने उनकी फैमिली को अंदर नहीं जाने दिया, आपने उनके वकला को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन इमरान खान का पैगाम बाहर आ चुका है। अब कौम को तैयार होना है, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसकी तैयारी पकड़े सब, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने खान की रिहाई तक सुकून से नहीं बैठेंगे। हम हर वो मूवमेंट करेंगे इंशाअल्लाह कि जिसमें हमारे इमरान खान को कैद तन्हाई से निकाला जाए, उनकी मुलाकातें करवाई जाएं और उनको रिहाई दी जाए। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत की है। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान साहिबा ने इस बात से कतई तौर पे इनकार किया है कि हम किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एग्जैक्टली exactly. नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगी जी कि जो है ना, इमरान खान साहब के साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं है, हमारी तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारी तरफ से अब स्ट्रीट मूवमेंट होगी, वकला तहरीक होगी, ठीक है, जिसकी जो है वो बाकायदा जो है पैगाम सलमान अकरम राज साहब को भी दे दिया गया है, सुहेल आफरीदी साहब को भी दे दिया गया है और कौम को भी दे दिया गया है। तो मुज़ाकरात तब होते हैं जब कभी इमरान खान साहब की रिहाई की बात होती है, जब कभी जो है एहतजाज की बात होती है, रोड पे आने की बात होती है, तब इनको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। मुज़ाकरात ये तब हमसे करें जिस वक्त हम अपने एहतजाज पे होंगे और जिस वक्त हमारी तहरीक कामयाब होगी, फिर हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे अगर इनको ख्वाहिश हुई। वरना ये याद रखें, कोई मुज़ाकरात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एहतजाज है, सिर्फ और सिर्फ रैलीज है, सिर्फ और सिर्फ हर वो मूवमेंट का हमने वो स्टेप लेना है कि जिसमें मोमेंटम बिल्डअप हो और लोग बाहर निकले और इमरान खान की रिहाई पॉसिबल हो। इमरान खान की रिहाई के अलावा ना हमारा कोई मुतालबा है, ना ही जो है हमारे कोई और मुज़ाकरात में हम इंटरेस्टेड हैं। इमरान खान जिंदाबाद। बेशुमार बेशुमार इंशाल्लाह 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 कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान इमरान खान लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे। दास्तान सुनाते हो हमें तुम, क्यों जुल्म की दास्तान सुनाते हो हमें तुम। हम देखेंगे किस तरह डराते हो हमें तुम,
हम देखेंगे किस तरह डराते हो हमें तुम, किस हाथ के मुजाबिर से डराते हो हमें तुम, किस हाथ के मुजाबिर से डराते हो हमें तुम। अब नाम न लेना, अब नाम न लेना, अब नाम न लेना किसी हाकिम का दोबारा, अब नाम न लेना किसी हाकिम का दोबारा। इमरान हमारा है खान हमारा, इमरान हमारा है खान हमारा, इमरान हमारा है खान हमारा। और इस टाइम जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो पीछे लगाई गई है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस टाइम कारकुनान की तादाद भी काफ़ी सारी मौजूद है और अभी जो है वो कारकुनान जो है ना वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी जो है वो बड़ा क्रैकडाउन जो है वो उसकी तैयारी भी की जा रही है। आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी आजादी हमारा, आजादी तुझे देनी पड़ेगी, आजादी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, रात का वक्त है। अलीमा खान और उनकी बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान धरना देकर बैठे हैं। अलीमा साहबा, आज हम देख रहे हैं कि अक्सर जो सहाफ़ी यहाँ आते हैं, भेजे जाते हैं, वो आपसे एक सवाल कर रहे हैं मुज़ाकरात का और बार बार मुज़ाकरात की बात की जा रही है, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैंने उनको कहा था कि आप सारे मिलके एक ही दफ़ा, सारे जितने भी ये सवाल पूछना चाहते हैं एक ही दफ़ा पूछ लो, क्योंकि जब इमरान खान एहतजाज की कॉल देता है मुज़ाकरात की बातें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि या तो ये जो हुकूमत वाले हैं ये डर जाते हैं और ये डिस्ट्रैक्शन करते हैं। इमरान खान बड़ा क्लियरली कह चुका है जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो खुद भी पूछ के बताना चाहता है, इन बेचारों से क्या बात करनी है, ये तो उनके हाथ में कुछ। आप पूछें कि जेल में मुलाकात क्यों नहीं हो सकती, वो कहेंगे मैं पूछ के बताता हूं। नहीं, वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। मरियम नवाज की ये प्रोविंस है, वो कहती मेरे हाथ में नहीं है, जो भी ये लोग बताते हैं सियासतदान। जब प्राइम मिनिस्टर से पूछता है सीएम, वो कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है। फिर मुझे ये बता दें, जब इनके हाथ में नहीं है तो इमरान खान कह चुके हैं इनसे क्या बात करनी है, एक, और वो मना कर चुके हैं। आप गौर से सुने, इमरान खान मना कर चुके हैं कि इनसे बातचीत नहीं करनी है। ये इमरान खान ही की हम सिर्फ बात कर सकते हैं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान की बात कर रही हूँ। नहीं तो फिर वो ये भी अपना मौक़िफ़ देते हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो ये राब्ता कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। कौन तहरीक इंसाफ में कर रहा है? ये सब गलत बातें हैं। तहरीक इंसाफ में कैसे बात कर सकते हैं? ये खुद ही निकालते हैं जान के। ये नून लीग वाले वो कह रहे हैं हम बात करना चाहते हैं, हमें अप्रोच करो, वो ये बेचारे लगे हुए हैं। वो बेचारे ये जान के डरे हुए हैं, ये जान के ज़बरदस्ती बातें करते हैं। पीटीआई में सलमान नकम राजा यहाँ खड़े हैं, आप उनसे पूछ लें, वो कहते हैं हमने किसी ने नहीं अप्रोच किया। ये झूठ बोल रहे हैं सारे। किसने अप्रोच किया? सलमान नकम राजा तो इधर खड़े हैं, वो उन्होंने तो नहीं किया, तो ना ही और किसी के पास है वो मैंडेट कि वो बात कर सकें। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि अब आपने कहा कि जब एहतजाज की बारी आती है तो क्या अब सड़कों पे निकलने का वक्त आ चुका है? इमरान खान ने पैगाम सुहेल अफरीदी को भेजा है कि तैयारी पकड़ो और सड़कों पे निकलो। ये सुहेल अफरीदी के लिए सलमान सफदर के हाथ पैगाम भेजा है। तो क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बाहर आएगा या पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए स्ट्रीट मूवमेंट की बात? ये मेरे ख्याल में देखें, जो लोगों का गुस्सा बढ़ गया है ना, आप ज़रा यहाँ बच्चे आए हुए हैं फ़र्क शहरों से, और आप याद रखें अगर गुस्सा फट जाए ना, ये बड़ा ख़तरनाक है, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडरशिप देती हैं ताकि चीज़ें कंट्रोल से बाहर ना निकल जाएं, क्योंकि जो वो फिर अनाकी होती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडरशिप देती हैं एहतजाज के, क्योंकि वो फिर एक
اپنا نیریٹو بناتی ہیں، پھر اس کو مینیج کرتی ہیں. یہ پولیٹیکل سائنس میں پڑھایا جاتا ہے. تو اس لیے حکومت کو عقل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بیچارے 2 دن نہیں بیٹھ سکتے. اگر لوگوں کا احتجاج جو عمران خان نے پیشین گوئی کی تھی کہ بنگلہ دیش اور ان کی طرح ہو جائے نا، تو پھر وہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. اور اس لیے پولیٹیکلی جب آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ کا آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے. جمہوریت کا ایک یہ حسن ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں اپنے حق کے لیے. ابھی آپ یہاں پر موجود ہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا جس طرح آپ کو کارکنان کو اٹھایا گیا اور بہت سے کارکنان ابھی ریمانڈ پہ ہیں، گرفتار ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہاں دیکھیں کیوں نہیں آئیں گے؟ کیا آپ یہ ڈرائیں گے؟ آپ کو گرفتاریوں سے ڈرا رہے ہیں؟ دیکھیں 9 مئی کے بعد جب گرفتاریاں کی ہیں تو شاید انہوں نے اتنے ہزاروں لوگ اٹھائے، لوگوں کے گھر توڑے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم عورتوں کو گھسیٹیں گے سڑکوں پہ تاکہ اس کے بعد خواتین ڈر کے گھر سے نہیں نکلیں گی. لیکن ماشاءاللہ پاکستان کی خواتین مضبوط ہیں. جب مائیں کھڑی ہو جاتی ہیں اس کے بعد ملک مضبوط ہو جاتا ہے. یہ اچھی چیز ہے. انہوں نے جو ظلم کیا تھا کہ یہ سوچ کے کہ خواتین گھر سے نہیں نکلیں گی، خواتین بھی گھر سے نکلیں گی، اب ان کے بچے بھی ہمارے نکلیں گے اور اپنے ملک کے لیے جیسے عمران خان بیٹھے ہیں سارے اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں گے اور اپنے ملک کو بچائیں گے. حقیقی آزادی یہی ہوئے گی جب لوگ کھڑے ہو کے اپنا حق مانگیں گے. اور جیسے عمران خان باری باری کہہ چکے ہیں کہ اگر آج آپ نہ کھڑے ہوئے اپنی آزادی کے لیے، اس غلامی سے، ایلیٹ کیپچر کی غلامی سے نہ نکلے، تو آپ خود تو چھوڑیں، آپ اپنی اگلے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو ان کا غلام چھوڑ کے جائیں گے. ابھی آپ یہاں پر موجود ہیں، پھر کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ سے اسی طرح واٹر کینن آئے گی، کیمیکل پھینکا جائے گا اور پھر ڈسپرس کیا جائے گا، کچھ لوگ گرفتار ہو جائیں گے. تو کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ ہم تو اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں. یہ غیر قانونی روزانہ غیر قانونی کام کرتے ہیں. عمران خان کا وکالت نامہ تھا ان کی بیل اپلیکیشن اور بشرا بی بی کی بیل اپلیکیشن فائل کرنے کے لیے. خالد یوسف ان کے لائر گیٹ کے اوپر پچھلے 4 گھنٹے سے بیٹھے تھے. انہوں نے یہ نہیں کیا جیسے ہمارے ساتھ کرتے ہیں، نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی کورٹ آرڈرز ہیں، یہ نہیں جانے دیتے نا ملاقات. عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. لیکن خالد یوسف تو وکالت نامہ سائن کروانے لائے تھے اور ان کو 4 گھنٹے بٹھا کے انکار کر دیا کہ ہم نہیں سائن کرنے دیں گے تاکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی بیل اپلیکیشن نہ فائل ہو سکے ہائی کورٹ میں. ایک فوٹو وائرل ہوتی ہے جس میں خان صاحب کی سردیوں کا جو لباس ہے، کپڑے، وہ بنی گالہ میں وہ کرسی پہ رکھ کے کہ وہ بھی نہیں پہنچائے جا رہے اندر. نہیں، وہ عمران خان کے 2 دفعہ کپڑے گرم جا چکے ہیں، تو مجھے یہ والے کپڑے کا نہیں پتا کہ 2 دفعہ جا چکے ان کے پاس گرم کپڑے ہیں. بہت شکریہ. ارے جینا ہوگا مرنا ہوگا، مرنا ہوگا مرنا ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا، مرنا ہوگا مرنا ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا، مرنا ہوگا مرنا ہوگا. جب تک جنتا تنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. ارے جب تک جنتا تنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. ارے جب تک جنتا تنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. جب تک بھوک اور ننگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. جب تک بھوک اور ننگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. ارے ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. ارے ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. ارے ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. ہم لے کے رہیں گے آزادی. ہے حق ہمارا آزادی. ہے حق ہمارا آزادی. ہے حق ہمارا آزادی. عمران خان زندہ باد. 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 ہم لگ کے رہیں گے آزادی. ہے حق ہمارا آزادی. تم کیسے نہ دو گے
आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, ये राख गठन है आजादी, इस राख के अंदर आजादी, पुलिस भी होगी आजादी, जेलें भी होंगी आजादी, अब फिर भी कहोगे आजादी, जरा सोच के बोलो आजादी, जब सोच लिया तो आजादी, डरना कैसा आजादी, नकार के बोलो आजादी, नकार के बोलो आजादी, नकार के बोलो आजादी, फाड़ के बोलो आजादी, है हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, इमरान खान जिंदाबाद। तो मैं पंजाब पुलिस को ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने किसी के ऊपर बंदूक उठाई, मैं अल्लाह के सामने कसम खाता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ उसको, जब तक हम उनको जो सजाए मौत है, कत्ल की सजा मौत है, जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे ऊपर यहाँ जुल्म किया था 25 मई को, इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी, ज्यादती करके जुल्म करके बच गए, इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, और मैं वो पुलिस वालों को कह रहा हूँ, जिन्होंने इस मुल्क में रहना है आपको हिसाब देना पड़ेगा, और आज से इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे केसेस आपके, और आप सबको हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। मैं लाहौर के लोगों को, और मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर यहां जुल्म किया था 25 मई को, इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी, ज्यादती करके। कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं। दुनिया को पता है, हमारी जजेस को पता है, हमारे जुडिशरी को पता है कि एक एक वोट लेने पे 90-70 करोड़ रुपए दिए गए। फैज हमीद पे केस चला है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया। इसको एक वर्दी पोस्ट जर्नल ने मैनिपुलेट किया। असरजान मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरे दाएं सारे लोग बैठे हैं, फैसल नसीर उसका नाम है। अरबों रुपए, मैं वाज़ेह ऐलान करता, अरबों रुपए इस वहां दिए और लिए गए। इमरान खान बुशरा बीबी पे इस केस का लगाना और यहाँ नाम लेना जुर्म है, नाम लेना बुरी बात है। करोड़ नहीं अरबों रुपए की चोरियां हुई हैं। फौज भी जानती है, जजेस भी जानते हैं, हमारे करप्शन, एंटी करप्शन के इदारे भी जानते हैं। अभी इलेक्शन में सेनेट में एक आदमी ने खड़े होकर कहा, बाबा मैंने किसी पार्टी की खिलाफ वर्जी नहीं की, मैं तो अपनी सीट इतने करोड़ रुपए में खरीद चुका था। एंटी करप्शन ने भी सुना, फौजियों ने भी सुना, अदालतों ने भी सुना, किसी ने नहीं पूछा कि जनाब इतने करोड़ आपके पास कहाँ आए, और फिर खुदा न खास्ता आपने वो अख्तरजान और महमूद को कैसे दिए, उन्होंने कैसे कबूल किए। ये पाकिस्तान का बदतरीन दौर चल रहा है माशी, लेकिन एक कंपनी है फौजी फाउंडेशन जिसके एसेट्स हो गए हैं $6 अरब, $6 बिलियन। इसी तरह 9 और कंपनीज हैं जिनकी अभी वैल्यूएशन हुई है, वो सारी मिलिट्री रन है। 9 कंपनियां जिनकी $1 अरब से ज्यादा की वैल्यूएशन हुई है, $1 बिलियन, 9 कंपनियां। दूसरी तरफ गुर्बत पिछले 5 साल में 29% से 42% तक चली गई है। पिछले 30-35 सालों में, अभी अकबर जैदी साहब ने एक बहुत अच्छा इस पे मजमून लिखा है, हम पर कैपिटा इनकम हमारी पाकिस्तान की, हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों से ज्यादा थी। अभी बांग्लादेश की 53% हमसे ज्यादा है और हिंदुस्तान की 71%। सिंध के ये हालात हैं कि 17 साल पहले जो लिटरेसी रेट था वो 58% था। 17 साल बाद अगर आप कुछ ना भी करो तो बढ़ता है पाकिस्तान में थोड़ा बहुत लिटरेसी रेट, वो 57% हो गया। 1% कम हो गया सिंध के अंदर लिटरेसी रेट। ये हालात हैं आम लोगों के, और 90% के पास साफ पीने का पानी नहीं है। दूसरी तरफ एक कंपनी है जिसके $6 अरब के एसेट्स हो गए हैं, और वो कंपनी जो है वो बालातर है किसी भी किस्म के एहतसाब से, क्योंकि वो पिंडी वालों की। ये आपकी मईशत का हाल है। IMF से जो लोन्स लेने पड़ते हैं वो मेरे और आपके लिए नहीं लिए जा रहे, वो आम लोग के लिए नहीं लिए जा रहे, वो वर्करों के लिए नहीं लिए जा रहे, वो किसानों के लिए नहीं लिए जा रहे, वो इस गले सड़े निजाम को जिंदा रखने के लिए लिए जा रहे।
ये जो 9 कंपनियां हैं जो उनके ना पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर उन्हें कोई बुला सकता है, ना डीएचएस का कोई हिसाब ले सकता है, ना जो इनके स्टड फार्म्स हैं और मिलिट्री फार्म्स हैं उनका कोई हिसाब ले सकता है, और तो और अब शादी हॉल भी ये चला रहे हैं, उनका भी कोई हिसाब नहीं ले सकता। ये हालात है आपकी एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है, और वो ये है कि ये जर्नैल मुल्क को नहीं चला सकते। इस मुल्क को जर्नैल नहीं चला सकते। 78 साल की सियासत का ये निचोड़ है। अब हमने करना क्या है? आज तक हम ये सुनते रहे, हर दिन बात होती है कि फातिमा जना से लेकर भुट्टो, वली खान, आज इमरान खान, हर सियासतदान गद्दार है। मैं कहती हूँ कि ये जो जर्नैल हैं, ये इस अवाम के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इस अवाम के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमारी अवाम के लिए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि इनको आपने बैरक्स में किस तरह वापस भेजना है। देखिए, हम लोग पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखते हैं। सारी जिंदगी हमने पुरअमन जदोजहद की। आज हमारी ये बहन आपके लिए काम कर रही है, इंसानी हकूक के लिए। मुझे वो दिन भी याद है जब 2000 में एक अंजुमन मुजाहिरीन उकाड़ा की तहरीक चली थी कि जिसमें बेघर जो उकाड़ा मुजाहिरीन थे उसके ऊपर फौजियों ने उनके साथ एक लड़ाई डाली। बराह रास्त वो जदोजहद थी, उनके ऊपर कत्ल के मुकदमे बने। हम उन साथियों के साथ करते रहे, हम उनके साथ लड़ते रहे। यहाँ पे सिर्फ एक पोलिटिकल डिवाइड पैदा की जाती है पाकिस्तान के अंदर, जो बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है। कौन सा एजेंडा है, किसका एजेंडा है कि 75 साल में हम अलहदा तो हुए लेकिन आजादी की जदोजहद हम आज भी कर रहे हैं। अभी हम आजाद नहीं हुए, अभी आजादी की जदोजहद हमने करनी है और वो हम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में देखिए उनका क्या कसूर है, सिर्फ ये कि जो अपने हुकूक की बात करता है उसको उधर आवाज खामोश करा दी जाती है। केपीके में दहशतगर्दी किसकी वजह से है? ये तमाम और इन जमहूरी कुव्वतों की वजह से नहीं है। ये किसकी वजह से वहां पे लोग मर रहे हैं? आज फिर आपकी नजर उनके मिनरल रिसोर्सेज के अंदर है, आज आपकी फिर नजर उनके वसाइल के ऊपर है। किसका एजेंडा है? ये बैरूनी एजेंडे हैं कि आज आप फिर सिंध के अंदर जाएं तो सिंध का पानी 6 किनाल का मंसूबा किसकी जमीन से, और फिर वो जो सिस्टम के खिलाफ नफरत होती है वो आपकी ताकत होती है। और हम उस सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं कि अब बिल्कुल हमें बाहर निकलना है और मुजामत सड़कों पे करनी है। लेकिन उसके साथ मैं नौजवान को एक पैगाम दूंगी कि आप लोग एक सवाल का जवाब तलाश करें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी पॉपुलर लीडरशिप होती है उसको इधर के लिए खतरा क्यों समझा जाता है? क्या वजह है? इसके ऊपर आपने तहकीक करनी है। मैं आपको इसका जवाब अभी नहीं बताऊंगी, आप सब सोचिएगा। सिर्फ नौजवानों को पैगाम दे रही हूँ कि क्यों आपके लिए कोई पॉपुलर लीडरशिप को जिंदा नहीं रहने दिया जाता। क्या कसूर है इमरान खान साहब का? सिर्फ ये कि जो वो बातें कर रहे थे, ये इस मुल्क में इस वक्त ये नहीं है, सबको पता है कि इंसाफ होना चाहिए। इतने तो मुझे पता ही बड़े कुंज़ेन है, लेकिन इतने भी कुंज़ेन नहीं है कि इनको ये नहीं पता कि 24 करोड़ की आबादी को आप बगैर रूल ऑफ लॉ के या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नहीं चला सकते। मसला सिर्फ ये है कि ये लाना नहीं चाहते। क्या वजह है? इस सवाल का जवाब हमें तलाश करना है कि क्यों ये मुल्क में आइन की और कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। पाकिस्तान की हुकूमत मुसलसल खसारे में जाने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने की दूसरी कोशिश करने जा रही है। पहली कोशिश गुज़िश्ता बरस की गई जो बुरी तरह नाकाम हुई। सिर्फ एक ही बिडर सामने आया जिसने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई, जबकि हुकूमत की मिनिमम रेफरेंस प्राइस 85 अरब रुपए थी। तो सवाल ये है कि एक साल में ऐसा क्या बदला है कि हुकूमत PIA को दोबारा बेचने के लिए पुरुमीद है, और वो भी उसके 100% स्टेक। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये देखते हैं कि PIA के ऑपरेशंस कितने बड़े हैं। PIA के पास इस वक्त 18 ऑपरेशनल जहाज़ हैं और उसके पास दुनिया भर में 78 डेस्टिनेशंस पर जाने के राइट्स हैं। इनमें लंदन और यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं। इसके अलावा PIA कनाडा भी जाती है, लेकिन अमेरिका में ताहाल उस पर पाबंदी कायम है। PIA के मुलाजमीन की तादाद लगभग 6000 के करीब है और उसके दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ असासाजात हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस PIA की एक होल्डिंग कंपनी कायम की। ये होल्डिंग कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और उसके दीगर असासाजात को भी ओन करती है। इनमें अमेरिका और फ्रांस में मौजूद होटल भी शामिल हैं। तो एग्जैक्टली हुकूमत कितना PIA बेचने जा रही है, इस हवाले से हमने प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र टू प्राइवेटाइजेशन मोहम्मद अली से बात की। PIA की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसकी कोर बिजनेस के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, वो जाएंगी। जो प्लेन्स ऑपरेशनल हैं वो जाएंगे, स्पेयर पार्ट जाएंगे, जो इसके नॉर्मल बिजनेस में जो रिसीवेबल्स होते हैं वो जाएंगे, जो पेएबल्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं वो जाएंगी, लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे, डेस्टिनेशन के राइट्स जाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो कंपनी के अंदर एक नॉर्मल गोइंग कंसर्न में होते हैं, ये तमाम के तमाम नए बायर को मिलेंगे फॉर द पेमेंट दैट दे मेक। इस मरतबा हुकूमत 60% के बजाय PIA के तमाम 100% स्टेक बेचने को तैयार है। बुनियादी बिड 75% की होगी और उसके बाद जो बाकी 25% स्टेक्स होंगे
वो बेचने के लिए कामयाब बिडर को पेशकश की जाएगी और ये पेशकश ग्रीन शू के तहत की जाएगी। ग्रीन शू इज़ एन ऑप्शन कि 75% तो मिनिमम सबको मिलेगा और इसके बाद उनके पास ऑप्शन है कि अगर वो 25% और लेना चाहें तो ले सकते हैं और वो उनको 12% एनुअल साल के हिसाब से प्रीमियम के ऊपर होगा वो, और उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो जो पैसे कंपनी में डलेंगे 75% की जो बिड होगी उसके बाद वो कैलकुलेट होगी। पीआईए की खरीदारी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो 75% बिड की जाएगी उससे हासिल होने वाली रकम हुकूमत सिर्फ 7.5% कैश मिलेगी, जबकि बाकी 92.5% पीआईए में री इन्वेस्ट किया जाएगा और जो बाकी मानदा 25% स्टेक होगा जो कि ग्रीन शू के तहत बिकेगा, उससे जो रकम हासिल होगी वो कौमी खजाने में जाएगी। तो अब इस सवाल पर आते हैं कि जब गुज़िश्ता बरस हुकूमत को कोई सीरियस बिडर नहीं मिल पाया था तो एक साल में पीआईए में ऐसा क्या बदला है कि कोई इसको खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। दो बड़ी चेंजेस हुई हैं। पहली बात तो ओवर द ईयर जो लॉसेस हुए उसकी वजह, और लॉसेस फाइनेंस हुए थे थ्रू कमर्शियल डेट, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने तकरीबन 650 अरब के जो लाइबिलिटीज़ थी वो ट्रांसफ़र कर दी टू द होल्डिंग कंपनी, तो उनके हटने से इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी कम हो गई और पीआईए के अंदर जो ड्रेन था वो कम हो गया। सेकेंडली पीआईए जो है वो लास्ट ईयर प्रॉफिट में थी और थर्डली लास्ट ईयर जब हमने बिड की थी तो उस वक्त पीआईए की इक्विटी नेगेटिव थी, इस बार पीआईए की इक्विटी पॉजिटिव है। इक्विटी बुनियादी तौर पर किसी भी असासे की वो मार्केट वैल्यू है जो लायबिलिटीज़ को ख़त्म करने के बाद बचती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक घर है और उसकी कीमत 4 करोड़ है लेकिन उस पर कर्ज 3 करोड़ है तो उसकी इक्विटी 1 करोड़ होगी। इसी तरह पीआईए की इक्विटी गुज़िश्ता बरस मनफी 45 अरब रुपए थी जो अब 30 अरब रुपए है। लायबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ये भी कर रही है कि वो कामयाब बिडर को जहाज़ों की लीज पर 18% जीएसटी की छूट दे रही है और साथ ही उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्सों का एक हिस्सा होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिया गया है। फिर भी कामयाब बिडर को पीआईए के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कुछ टैक्स और बैरून मुल्क कुछ लायबिलिटीज़ अदा करनी होंगी जो वो अपने मुनाफा से अदा करेगी। जो इन्वेस्टर्स इस मरतबा बिडिंग के प्रोसेस का हिस्सा हैं वो गुज़िश्ता बरस भी थे लेकिन वो फाइनल बिडिंग के प्रोसेस में शामिल नहीं हुए। उसकी वजह ये थी कि जो उनकी एक कुछ आस्क थी वो गवर्नमेंट मीट नहीं कर सकी थी और उसकी वजह थी कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों की हमें परमिशन आईएमएफ से भी लेनी पड़ती है। इस बार वो सारी अप्रूवल्स भी हो गई हैं और बिडर्स के साथ हमने नेगोशिएशन की हैं और जो रीजनेबल आस्क थी वो हमने मान ली हैं। सेकेंडली इस बार जो बिडर्स फाइनल राउंड में हैं, एक एयर ब्लू है जो लकी ग्रुप का कंसोर्टियम है, उसमें उनके साथ हपको वाले हैं, कोहाट सीमेंट और गुल अहमद एनर्जी, और जो दूसरा कंसोर्टियम आरिफ हबीब साहब का, उनके साथ फातिमा फर्टिलाइज़र, गौहर एजाज और अकील करीम डेडी साहब और सिटी स्कूल वाले। तो ये पाकिस्तान के बहुत ही सक्सेसफुल और बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं। आखिर में एक सवाल ये भी है कि पीआईए के मुलाजमीन का मुस्तकबिल क्या होगा। हुकाम का कहना है कि कामयाब बिडर को पाबंद किया गया है कि वो 12 माह तक किसी मुलाजिम को बरतरफ नहीं कर पाएगा, साथ ही वो उनकी तनख्वाहें, उनके बेनिफिट्स और पेंशन्स वगैरह अदा करता रहेगा। हाँ, लेकिन वो इस बारे में आज़ाद होगा कि वो नई भर्तियां कर पाए। 9 मई फॉल्स फ्लैग, अस्करी बयानिया बमुकाबला हकीकत। अस्करी बयानिया डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा समेत एजाज चौधरी को मुसल्लह हजूम की क़यादत करने के जुर्म में 10-10 साल कैद की सजा। हकीकत 9 मई 2023 को कोई मुसल्लह हजूम नहीं बल्कि पुरअमन अवाम इमरान खान की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। इस एहतजाज का पस मंजर रेंजर्स की जानिब से अदालत में तोड़ फोड़ करके अदलिया का तकद्दुस पामाल करके इमरान खान की गिरफ्तारी करके अवाम को सोची समझी साजिश के तहत उकसाना था, जिसके बाद अवामी एहतजाज में घुसकर कुछ शरपसंद अनासिर जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था न ही अवाम से, उनके इश्तियाल दिलाने पर लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू की तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इन्हें बाकायदा और बार बार रोका। ऑन रिकॉर्ड डॉक्टर यास्मीन राशिद के अवाम को रोकने के बयानात मौजूद हैं। जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें, आप बाहर आ जाए सारे। अब प्रोटेस्ट करने आए हैं। वो कह रही हैं कि आप कोर कमांडर हाउस में एंटर होने की कोशिश ना करें। अस्करी बयानिया
9 मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ फैसले रियासत की बालादस्ती को ललकारने वालों के खिलाफ एक कदम है। हकीकत 9 मई के मुकदमात में सजाएं सिर्फ सियासी इंतकाम में इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहने वालों को दी जा रही हैं। अगर वाकई कोई रियासत की बालादस्ती की बात होती तो एक ही गाड़ी पर सवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ छोड़ने वाली अंदलीब अब्बासी, आज़ाद और डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में न होती। अस्करी बयानिया। पार्टी की क़यादत ने इमरान खान से राहें नफरत अंगेज सियासत की बदौलत जुदा की और इमरान खान की 9 मई में मुलव्वस होने के बयानात जारी किए। हकीकत 9 मई को इमरान खान खुद रेंजर्स की हिरासत में थे और इनका न तो किसी से राब्ता था और न ही वो बाहर होने वाले एहतजाज से वाकिफ थे। मजीद ये हकीकत भी रोज़ रोशन की तरह आया है कि तहरीक इंसाफ किसी ने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी, बल्कि धौंस, जबरी अगवा, मारपीट, तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग जैसे हरबे अपनाकर लोगों को तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई और उनसे इमरान खान के खिलाफ बयानात दिलवाए गए और जिनसे ये खिदमात न ली जा सकी उन्हें 9 मई के मुकदमात में फंसा दिया गया। नतीजा, टाउट अदालतें चाहे 9 मई के मुकदमात में कितने ही फैसले दें, अवाम इस हकीकत से आशना है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग था और इसके मुजरिमान वही हैं जिन्होंने इसकी फुटेज चुराई। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब ये हालात बदलेंगे, कानून की बालादस्ती आएगी और इन सब का एहतसाब होगा जिनकी ज़ाती अनाओं ने मुल्क को कानून और इखलाकी हर लिहाज से दहाइयों पीछे धकेल दिया है। जब एक कौम ये फैसला करे और जी देखें इमरान खान ने वो देखें क्या कह दिया, वो रूस चला गया जी, अमेरिका नाराज हो गया, अच्छा जी उसने नरेंद्र मोदी को कह दिया कि वो हिटलर से इंस्पायर्ड है, देखें इंडिया को नाराज कर दिया, वो कश्मीरियों के लिए खड़ा हो गया, देखें जी वो क्या कर दिया, ये क्या कहते फिर रहे हैं, वो जी हमें आइसोलेट कर दिया। इनका मतलब ये है कि आइसोलेट ना कैसे होता है, उनके जूते पॉलिश करने शुरू कर दो, उनके पैरों में गिर जाओ। इनका मतलब ये है कि लोग इसको अच्छी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी तो आप 50 साल से कर रहे हैं, तो अब तक तो पाकिस्तान को सुपर पावर बन जाना चाहिए था लोगों के जूते पॉलिश करके। कभी सुना किसी कौम ने जाके अपने किसी और की जंग में 80,000 अपने लोग कुर्बान कर दिए? कोई दुनिया में इसकी मिसाल है? ये उनके 3,000 से कम लोग मरते हैं, आपके 80,000 लोग मर जाते हैं और कोई शुक्रिया तक नहीं करता, बल्कि हमें जिम्मेदार ठहरा देता है जो अफगानिस्तान में उनका फेलियर हुआ। और मैं जब ये कहता हूं कि पाकिस्तान ने तो तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं, और मुझे आगे से कह रहे जी ये ना कहो अमरीकी नाराज हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि अगर इस तरह की हम अपने आप को जलील करके समझते हैं कि पाकिस्तान कोई पैर पे खड़ा हो जाएगा, गलत फहमी में ना रहे। हमने एमल कांसी को पकड़ा दिया, उसके वकील ने जाके वहां अदालत में कहा जी पाकिस्तानी अपनी वालदा भी बेच दे पैसे के पीछे, डॉलरों के पीछे। तो हमारी वजह से हमने जिल्लत कमाई, हमने अपने आप को जलील किया। उसको दूसरे को, एक रमजी यूसुफ, उसको पकड़ा दिया। रेमंड डेविस ने दिन दिहाड़े आके 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया, वो चुप करके उसको वापस भेज दिया। फिर 400 ड्रोन अटैक कर दिए। कभी हुआ ही नहीं कि दुनिया की तारीख में कि आप उनकी जंग लड़े हैं, वो आपके ऊपर ही ड्रोन अटैक कर रहे हैं। इसकी कोई मिसाल नहीं है। इससे अगर हमने ये जूते पॉलिश किए इतनी शेमलेसली, अपने आप को जलील करके, क्या उससे कोई फायदा हुआ पाकिस्तान को? आज गिरे हुए पैरों में। इस तरह कभी कौम नहीं बनती, कभी आज तक दुनिया की तारीख में कौम नहीं बनी। मैं बार बार मदीना की रियासत की इसलिए मिसाल देता हूं, वो पहले दिन मदीना की रियासत ही बन गई थी, उन्होंने जद्दोजहद की थी, उन्होंने मिलके, कम्युनिटी ने 2 जंगों के अंदर, जंग ओहद और खंदक के अंदर, तो उम्मा को खतरा था कि वो बचेंगे भी या नहीं। फाके किए उन्होंने जब उन्होंने सीज की हुई थी मदीना की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर पेट पे बांध के काम कर रहे थे, वहां कुर्बानियां दे रहे थे। कौमें कुर्बानियां दे के बनती है, भिखारियों की तरह भीख मांग के जूते पॉलिश करके कोई कौम नहीं बनी आज तक। तू पास है, मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे, तू पास है मेरे पास है से
मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ है सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ है तेरे आंसुओं का बना हूँ मेरी हंसी में तेरी सदाएं तेरी कहानी खुद को सुनाऊं यादों के तारे यादों तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं सारी बातें तुझसे कहेंगे दुनिया में चाहे बन जाए जो भी तेरे बिना